sir, you were defending Mr. Arvind Kejriwal, who was like the first sitting chief minister who was arrested. I appeared for Salman Khan and Lawrence Bishnoi both. Oh my God. As a lawyer and as the brief that I had, and they were abuse of the process of law. मैं एज ए डिफेंस काउंसिल खुद बोलता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बायस्ड है. और यहाँ पे मशहूर है जी कि पहले आप क्रिमिनल आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद सर्कमस्टेंसेस. दैट इज व्हाई जो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है दैट यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको थोड़ी सी मान्यता दे दें. तो इतना बड़ा मॉरल डायलेमा नहीं है हमारे लिए जितना आप मतलब हमें परसीव करते हैं कि ये जी ये बहुत बुरा आदमी है, इसका केस ले लिया, ऐसे नहीं. Hi everyone, welcome back to another episode of the Grain Talk Show. Our guest today is the distinguished criminal lawyer, Mr. Vikram Chaudhary, who has represented several high-profile cases, including politicians, film stars, and various celebrities. Sir is an expert in areas such as anti-money laundering and corporate fraud, and often appears in front of the Supreme Court and High Courts of India. Very recently, Vikram Sir was felicitated by the Supreme Court of United Kingdom. Sir, it's such a pleasure for us to have you today on the Grain Talk Show. Vikram Sir, thank you so much for being a part of the Grain Talk Show. It's completely our pleasure. It is a privilege for me. Thank you, sir. Thank you. Sir, I want to ask you, like, you have dealt with several high-profile cases, which have grabbed so much of headlines. And I want to know कि ऐसे cases को करने के लिए, when there's so much of public opinion and so much of scrutiny, and when public opinion is so polarized, उस समय ऐसे केसेस को डील करने के लिए what is your approach, because you know that you are being watched at every step. So what is it like at that time? See, the cases that come are at the end of the day cases, whether they are profile, right, or they have a different connotation. One has to go beyond that. At the end of the day, we are only doing what our professional ethics and service requires us to do. So, in my life, every case I have considered it equally important. Why? Because if we do a case of an ordinary man on the street, right, even that case will make law for others to emulate and follow. Absolutely. So the responsibility for an ordinary case and a case which is maybe in social media considered to be VIP, they are actually the same. The effort goes in is the same. The approach is same. The approach is also the same. Like, you are not affected कि इतना ज़्यादा लोग उसके साथ associate कर रहे हैं. When I started practice, the media was not that I would say active. No, not media was always active, but it was kind of a print media, which was more in vogue. Correct. But as the advent of the social media, technology and social media and so many channels, correct. Yes, every aspect is being watched. Right. Not only us, but I would say the honorable judges. Judges also, they have a very difficult task to perform. So we are under scrutiny, and I think we've now got quite used to that. Like, sir, you were defending Mr. Arvind Kejriwal, who was like the first sitting chief minister who was arrested. I mean, it was a shocker that a sitting chief minister was arrested. And then while you were into the case, हर मोड़ पे ये नहीं लग रहा था कि अब मीडिया क्या कहेगी, अब क्या होगा, अब क्या लिखा जाएगा, और यू आर कूल कि जो अपना काम करना है वो करते रहना है. Media is a very important organ of our society. And it performs a stellar role in the country. They are doing their job. And we as professionals or anybody else who is dealing with the administration of justice, even the law enforcement agencies, they are also under scrutiny, as you said just now. Bilkul. And even if the accused is a celebrity, the lawyers, the honorable judges, the courts, everybody is under that kind of a scrutiny. Is not a scrutiny with which actually our respective fields will get affected. We are all poised to do our own job. And that has to be done with utmost professionalism, ethically, morally sound, and of course, it has to be done with knowledge and due diligence. So we do not get trammeled by what we, as professional, as an advocate or as a lawyer, our job is to just fight the case, do justice to the case and cause. And again, sir, I want to know, how do you maintain objectivity? Like, supposingly कोई ethical dilemmas होते होंगे, like when you know that जो मैं
client hai, maybe he is at fault, and but it's my job, I have to defend him. So what are the ethical dilemmas, and उसमें बैलेंस रखना मोरालिटी को और राइट और रॉन्ग को, एंड अपना काम करते जाना, बिकॉज योर वर्क इज टू फाइट योर केस. इट इज योर utmost duty to do your best for the case that you are fighting on. तो how do you balance it at that time when you know कि हाँ public भी शायद इसको guilty मान रही है, and मुझे भी पता है ये guilty है, but मुझे उसको defend करना है. There may be variation of opinions of professionals in this regard, but I remember somebody asked Mr. Jethmalani, very, very senior jurist of this country. He's no more. He's parliament. That why should Kasab be defended? Why should Kasab be defended? And I think he wrote an article which appeared in the front line called "No Hoors Inside the Jail. Hoor is like hoor." Okay. Apsara. Okay. So we will be very happy if you use more of a little bit of Hindi also. Thoda beech mein. Our viewers will be happier. He resoundingly writes about an attorney general from the United Kingdom who resigned because he believed that the first and foremost duty of a legal professional is to defend his client, right? Irrespective of his personal thoughts. Right? His professional duty is entirely different. Hanji. Our constitution, which is sacrosanct, सबसे बड़ी चीज इस देश में संविधान है जी. तो संविधान में आर्टिकल 22 है, इसमें ये लिखा है कि हर एक एक्यूज्ड को राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस है, होना चाहिए. बट प्रैक्टिशनर के पास क्या चॉइस है कि मैं इसको रिफ्यूज कर दूं? दैट्स अ सीरियसली, आई वुड से एट टाइम्स डिबेटेबल, बट आई वुड से दैट एज अ लॉयर यू शुड think just like a doctor, that even if a worst kind of a person with antecedents of worst kind comes to on his operation table and is dying, his duty is to protect the life. Right? And similarly, a lawyer's duty is to do that. Though, yes, in practical and real sense, we can have a choice at times, and especially when a person like me who's to be briefed by a lawyer, unlike an advocate, a senior advocate has to be briefed by a lawyer. So at times you may have a choice. But I can tell you ordinarily that in every case, as a criminal lawyer, my basic core field is criminal law. So in criminal law, there is a presumption of innocence that goes always with the accused. Okay? He's presumed to be innocent until proven guilty, and that too beyond the shadow of a reasonable doubt. So that stage comes later. So when we defend someone, whether it is a profile case of any nature or a normal case, right? Our endeavor is, as a lawyer, my endeavor at least has been to ensure that assuming an investigating officer, he's doing very well. ठीक है. He is morally sound. ठीक है. And he has got some scientific leaps also into investigation. And he wants to nail down a person. And he thinks that this is a very bad man. Imaginarily or in reality? In reality. In reality. I'm talking of an investigating officer's perspective. But no, there's a thin line of demarcation, which is that even if he knows or he believes, then also he can't sidestep the line that ends to be achieved cannot justify the means to be employed. Correct. So his investigation has to be fair, impartial, objective. His personal opinion should not cloud his decision-making process. Right? So those aspects are the core area on which we practice. And we ensure that investigations do not transgress a line where presumptions and assumptions take the place of proof. Right? That's how we defend people. Right. और सर, जो criminal, आप suppose करो कोई criminal है, so have you ever noticed कि कोई criminals की कोई particular psyche होती है, या psychologically वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कि हर केस डिफरेंट है, कि कुछ साइकोलॉजिकल कॉमन थिंग्स होती हैं उनमें? इज देयर एनीथिंग दैट इज ड्राइविंग देम टू? देयर आर व्हाट यू कॉल, जी कहते हैं ना जी, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. तो इन रियलिटी I can only tell you my experience, which may be very little in compared to many
giants here in our country. So everybody has a justification Of doing crime. of doing something which is accused of doing, or doing it in a way that it is not a crime. Mhm. There is also, the law, criminal law is very strict in its understanding, in its application and approach. So it is strict. Mistake cannot be crime. Right? जी. Intention and knowledge. You're talking, I believe, since you're talking जी, about जी, जी. cases of Criminal criminal nature. nature. Criminal nature. So intention and knowledge, Latin में कहते हैं mens rea. So though Mens rea. mens rea, that is the first and foremost prerequisite. Right? Was it done with an intention? Was there adequate knowledge? Right? Yes. At times, ignorantia juris non excusa. मतलब ignorance of law is no excuse. Right? Ignorance of law is no excuse. No excuse. But जी. then there are exceptions. हाँ जी. We call them general exceptions. पहले इंडियन पीनल कोड होता था, भारतीय जो हाँ, न्याय IPC न्याय होता संहिता, था अपने। भारतीय न्याय संहिता बनी, जी. तो उसमें एक्सेप्शंस हैं जी. कि कैसे वो क्राइम एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएगा. जी. अब आपने उनका साइकोलॉजिकल वो बात पूछी, पूछिए. तो मैं आपको ज्यादा दूर क्या जाना है, तो आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स, 3 कैटेगरीज के Perfect. एग्जांपल शायद मे बी बिफिटिंग. जी. एक एग्जांपल लीजिए आप, ऑर्डिनरी हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट. ठीक है. Right? जी. You know, recently there was a spate of cases. जी 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 जी. एक husband, I think, took his life. It जी became जी a जी बिल्कुल very बिल्कुल. raging It's issue. in my बिल्कुल. तो अब उसमें ordinary wear and tear of marital life. Mhm. There is not a single couple who would not have confrontation or Correct. some kind of Yeah, differences. yeah, yeah. But then they turn those small things into So something bitter very big and huge, जी. bitter. जी. And then how do you judge criminality of anyone in that? बिल्कुल. But yes, there are circumstances where somebody has, Taken. physical Yeah. abuse or some kind of a mental abuse. जी. These are all relative, right? Hmm. Very relative. Right? Allegations are from both sides. So it is very difficult to To assess. judge, हाँ. So हमें जी हम normally हमें जब describe करते हैं कोर्ट में तो कहते हैं counsel for so and so. So counsel is COUNSEL. तो counsel का मतलब क्या है कि हमें counseling करनी चाहिए. हाँ. So ठीक we है. are deemed to be counselors, counseling Our clients. party. Our yes, client. advising them properly. जी. So मेरा तो रिकॉर्ड है जी. दूसरा एग्जांपल, family disputes, ordinary हम्म. property, हम्म. whether it is father, भाइयों son, में है क्या brothers, या sisters, daughters claiming or whatever. whatever family disputes, Family or several जी, जी. you know, and I know so many disputes. Those, always my advice is to my client that please look for a solution outside. Correct. Mediation has to be encouraged in this country. Our courts are clogged. Clogged. बिल्कुल. The real cases do not get adequate time. Correct. These are luxury litigations and अच्छा, you some call of them them- luxury litigations. yes, avoidable Avoidable. luxury litigations. Correct. बिल्कुल. And some of us, my profession, are in disguised employment because we are doing those cases which actually do not contribute to evolution of law, बिल्कुल. right? But जी. consume so much of time. Time. People keep fighting. Just what you call a detour. I wrote a song on in Punjabi. You wrote lassi, na? Lassi. Lassi is on Okay. to avoid disputes, अच्छा. squabbles, Okay. and live peacefully. कुछ सुना दे. Some lines out of lassi. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੋ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ ਲੱਸੀ. बिल्कुल ठीक बात है. So this is second category. हाँ, And the third category you come to now, hardcore criminals, right? So I had the good fortune of appearing for Salman Khan and Lawrence Bishnoi both Oh my God. in 2 different connotations and different regimes. Okay. And both, I can tell you, in their own cases, I mean, they are not connected. In their own cases, there was, as a lawyer and as the brief that I had, there were abuse of the process of law. Right? Mhm. In both the cases, there was perversion of law. There was some kind of semblance Mhm. of legal principles which appear to have been violated. Right. Right? And both have a sanguine case to succeed in their own regime. जी. So now you can't
compare oranges and apples. बिल्कुल, you Right? can't compare. So simply because someone is someone. हाँ जी. And yes, I have seen people who have come to me. I was a young lawyer, maybe a month or two old, and a person came to my father. He was a very leading lawyer. जी. And he said that I've committed murder of my uncle. And this was in the rage of anger. Fit of anger. Because he provoked me so much. And there was a long-standing dispute going on. Finally, I cleared it. But I want to surrender. Okay. After committing the murder straight, he came to my father for surrendering. And he surrendered him in the court. So we have seen people like that as well. Right? So human nature. And you never know कि किस तरफ. And as lawyer, I must tell you, when I joined the profession, so the judge asked me a question and I appeared before them. So I said, no, it doesn't appear to be correct. The judge asked you? Judge asked me about something about the circumstances and said, the judge made a presumption it ought to be like that, the way it is. I said, no, Lord, I don't think it is like that. He said, Mr. Chaudhary, just remember one thing. You must know the art of interviewing your client. Interviewing your client. Before you take up the case. The client will hide things from you. So you have to ensure that he makes a clean breast of things before you can defend him. तो आप पहले ही बोल देते हो मुझसे झूठ मत बोलना. पहली बात ही है जी. और जो झूठ बोलता है वो जो झूठ बोलता है या आपसे फैक्ट्स छुपाता है और वो दूसरी साइड लेके आती है. हमारी तो तैयारी होती है जी डेविल्स एडवोकेट वाली. बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट. जब वो उनकी दूसरी तरफ का आर्गुमेंट नहीं सोचेंगे तो डिफेंड कैसे करोगे. तो जो नहीं बताता है वो खुद का तो नुकसान करता ही है. प्लस कोर्ट में वी फील एम्बैरेस्ड. जी बिल्कुल. यू नो इफ आई से समथिंग as a brand, as a brand, you would also feel कि हाँ ये मेरे से छुपाया गया और मैं कैसे अब इसको defend करूँ. Correct. And the court loses sanctity, morality in that of that case. और sir ये जैसे हम we see so much of Bollywood courts and असली में जो courts होते हैं they थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है कि similar तरीके से. Much better than that. अच्छा, okay. You can ask my wife that question. Okay. Oh my God. We were newly married and there was a picture called Insaf Ka Tarazu. And she was watching that movie and suddenly a court scene came and I started lambasting. No, this doesn't happen like that. This doesn't happen. So she was very livid. She says, you can't take movie as a movie. But that was day one. And today, after maybe 33 years in practice, I can tell you that the court submissions, the court atmosphere. As I was saying, ji, that our courts in India, if you compare them with any of the so-called developed worlds, jurisprudence of the developed worlds, number one, our jurisprudence, I would not say equivalent, but I would say far better. Far superior. Better because it has better safeguards. Our constitution is a beautifully written document. And so is our implementation. Our constitutional courts are not only talking of the courts, say in hierarchy below, they are not subordinate to. We don't use the word subordinate anymore for our judiciary. They are courts. They are also courts of justice. But constitutional courts, jo jitna experience mera hai ji, I can tell you that each judge is dealing with say more than 100 cases in a day at an average. And 100 times you have to sign something, how difficult it is, and then you hear, then you judge, you decide, then you first you read. Most of the judges, you would be astonished. They come prepared after reading the files. God bless them with oodles of energy. कितना वो टाइम बिता रहे हैं. रात को मैंने ऐसे भी जजेस देखे हैं जी जो रात को 8:30-9 बजे तक अपने चेंबर, कोर्ट के चेंबर से ही घर नहीं जा पाते. और फिर सुबह उठ के फाइलें पढ़ के वो सुबह 10 बजे कोर्ट चला लेते हैं. So, इतना बर्डन है हमारे कोर्ट्स पे. Despite all this, right? So there is onerous responsibility जो हमारे ऊपर है as lawyers, कि हम सबसे जो हमारी ट्रू एलिजियंस है वो कोर्ट्स को होनी चाहिए. जी. नो डाउट हम अपने क्लाइंट का केस प्रोजेक्ट करते हैं जी, बट हमारी ट्रू असिस्टेंस कोर्ट को होनी चाहिए. क्योंकि कोर्ट का रोल हमने जो है वो ईज करना है जी, उसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देनी है. करेक्ट. तो उसको इस ढंग से फेयर तरीके से
प्रेजेंटेशन करें कोर्ट में. एंड दिस इज फॉर ऑल. मैं अपने ऑफिस में या अपने जितने मेरे से जूनियर कोलीग्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि हमारी फर्स्ट एलिजियंस हमेशा कोर्ट के साथ होनी चाहिए. अगर कुछ गलत किया है, हमारे केस में कुछ गलत है, तो सबसे पहले खुद ही बताओ कोर्ट को, सो दैट इट इज इजियर. और दूसरी साइड का भी उसमें नो डाउट जो हमारे मोस्टली केसेस में प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं, बट मोस्टली स्टेट या स्टेट वर्सेस, और स्टेट को आप कह सकते हो तो सेंट्रल एजेंसीज आ गई जी. या ये आ गए, तो उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में आज, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी स्मूथनेस होनी बहुत जरूरी है. और उसके लिए हम सब स्टेक होल्डर्स हैं. तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं जी, तो ये चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान लेके चलते हैं कि वी आर एम्बेसडर्स. अगर मैं किसी केस में अपीयर हो रहा हूँ तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही ढंग से डिसाइड हो. बिल्कुल. क्योंकि हमारा इंडियन लॉ जी प्रेसिडेंट लॉ है. प्रेसिडेंट का मतलब है जी कि एक केस का एग्जाम्पल दूसरे केस में जाता है. और मोस्टली एक प्रिंसिपल और होता है, उसको हम कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस. स्टेयर डिसाइसिस का मतलब है कि जो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया तो वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कैरी फॉरवर्ड होता है. उसको उसके ओबीडियंस होती है. यस, उसकी ओबीडियंस होती है, वो चलता है प्रिंसिपल. तो इसलिए वो decorum and everything you have to be very true to it. Absolutely. So these are the in criminal justice system ji, these are what you call some important safeguards and ingredients and responsibilities and obligations from all sides. तो ये फुलफिल करनी होती हैं. तो इसमें जब हम करते हैं तो क्लाइंट से, जो आपने सवाल ओरिजिनल था कि क्लाइंट आपको किस ढंग से आप उसको असेस करते हो, तो हमारी असेसमेंट सिर्फ क्लाइंट के फैक्ट्स पे नहीं है जो आपको लगता है कि ऑर्डिनरी लेमैन को लगता है. तो हमारा पर्सपेक्टिव लीगल होता है, विच इज टोटली डिफरेंट. तो हमारा एक आर्टिकल 21 है जी कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द, यू कैन से द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 वो कहता है जी, no one shall be deprived of his life or liberty except in accordance with procedure established by law. तो procedure established by law, और जो अमेरिकन jurisprudence में या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो एक ही मतलब हमने इन्फ्यूज कर दिया उसमें. ठीक है. तो हम जब एज क्रिमिनल साइड के लॉयर्स कोर्ट में जाते हैं जी, तो हमें ये बताना होता है जी कि सारे प्रोसीजर फॉलो हुए कि नहीं हुए. अब कोई सर्च कैरी आउट करनी है, एक फीमेल की सर्च है, तो उसमें जैसे नारकोटिक्स है, तो इट इज नॉट कि नारकोटिक की रिकवरी हो गई तो ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है. दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट जी. बट टू बिलीव दैट रिकवरी इज जेन्युइन, देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड टू फॉलो दी, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ लॉ. और उसमें लॉ में ये लिखा है जी कि अगर आपने किसी फीमेल की सर्च की है तो आप एक फीमेल के साथ ही कर सकते हो, फीमेल ही कर सकती है. फीमेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही होगा, फीमेल सर्च ऑफिसर होगा. यू कांट टच द बॉडी ऑफ अ फीमेल. या कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको एक मैंडेटरी किसी को ये ऑफर देनी है कि आप मेरे से सर्च कराना चाहते हो या किसी बाहर ऑफिसर से या मैजिस्ट्रेट से कराना चाहते हो, तो ये ऑफर नहीं दिया तो ये विशिएट हो जाता है जी. तो ये प्रोसीजरल बातें हैं. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जी, या इसी तरह करप्शन केसेस में, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में, देयर आर सेफगार्ड्स बिल्ट बाय लॉ. वो लॉ क्या है? लॉ पार्लियामेंट बनाती है, उसको एनफोर्स एग्जेक्टिव ने करना है, जो एग्जीक्यूट एग्जेक्टिव ने करना है, जिसको गवर्नमेंट कह दो. और जुडिशरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन की जो मान्यता है कि वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, कोई वायलेशन नहीं, वो देख रही है. सो तीनों ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन है, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो सबकी एक सोच अलग है. तो इतना बड़ा मॉरल डायलेमा नहीं है हमारे लिए, जितना आप मतलब हमें परसीव करते हैं कि ये बहुत बुरा आदमी है, इसका केस ले लिया, ऐसे नहीं. जी, समझ आ गया. Also, sir, I want to talk about the interplay between power, influence and judicial system in India. कहने को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि गरीब है या अमीर है सबको जस्टिस बराबर मिलेगा. But when you're very powerful, you're very rich, you have the ability, like as a criminal, I'm saying, you have the ability to meddle with the investigating officers and investigating agencies, चाहे वो ED हो या CBI हो या पुलिस ही हो.
सो फिर जस्टिस तो फिर उसी को मिलेगा जिसने बेस लेवल पे ही इंटरप्ले अपना कर लिया है, सब कुछ अपना पोल्यूट करके एविडेंस या सब कुछ, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ सब कुछ ब्राइब करके कर लिया है. सो इस केस में फिर गरीब आदमी को तो जस्टिस मिलेगा नहीं ना, अगर वही बंदा जो पावरफुल है वो ही मेडल कर गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को. श्रुति जी, आई टेक इट दैट ये जो सवाल आपने पूछा है ये एक पब्लिक परसेप्शन बेस्ड सवाल है. आपका सवाल सिर्फ क्राइम और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के साथ नहीं है. आपका सवाल जो है ना जी, वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के ऊपर है. तो आप अपनी कंट्री की इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी के ऊपर कर रहे हो कि ये इंस्टीट्यूशंस इंटेग्रिटी गेट्स ट्विस्टेड एंड बायस्ड डिपेंडिंग अपॉन यू, as there is an idiom or a phrase commonly used, you show me the face and I'll show you the law. Right? Well, let's caution ourselves and put us into two spheres. First sphere, under the law, Evidence Act हमारा, या भारतीय साक्ष्य संघ VSS, इसमें प्रिजम्पशन है कि जितने ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं ना जी, वो रेगुलरली और सही तरीके से परफॉर्म हुए. There is a official acts there is a presumption that all official acts are performed in accordance with law. They are duly performed. They are regularly performed. Right. Presumption. I am not saying that they are done in every. In fact, मैं एज ए डिफेंस काउंसिल खुद बोलता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बायस्ड है, या किसी केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोफेशनली नहीं किया हुआ है, मे बी फॉर अगेंस्ट एन अक्यूज्ड, फेवर में करें या अगेंस्ट करें जी. तो हम ये एक प्रिजम्पशन बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड, ये एक कॉमन मैन का अजम्पशन है, मगर ऐसा नहीं है. यस, our investigating agencies have to be professionally, they have to be trained enough to gather scientific objective evidence without indulging in abuse of process of law. यहाँ पे मशहूर है जी कि पहले आप क्रिमिनल आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस बनाते हो, which is wrong. So we need institutions to be strengthened. Investigating agencies, ऐसे डाउट कभी नहीं आएंगे. अब आपने बोला जी कि rich or powerful can manipulate the law. Well, this is again a presumption. I ask one question, और ये actually एक बड़े senior counsel ने ये statement कोर्ट में भी बोली that these are rich people who can afford big lawyers, witness को खरीद सकते हैं, big lawyers to come and defend themselves. I won't say witness खरीदने वाली बात, वो भी it is factual based. किसी केस में अब किसी ने कुछ कर लिया है तो आपके पास फैक्ट होगा तो आप उसको करोगे, बट दैट प्रिजम्पशन आप लेकर सारे केसों को, यू कांट पेंट एवरी केस विद द सेम ब्रश. सो दीस आर ऑल ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, सब कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है. देयर आर सम केसेस, देयर आर एरर्स समवेयर. तो मैंने आपको बताया कि किसी लॉ ऑफिसर ने भी ये कोर्ट में बोली है बात. तो मैं एक सवाल पूछता हूँ जी, कि सपोजिंग आप एक कॉम्पिटेंट लॉयर को लेके आते हो अपना केस डिफेंड करने के लिए, सो ऑब्वियसली that lawyer, you are able to afford him in the sense that commercially that lawyer is charging more than an ordinary lawyer. Correct. वो भी इसलिए है कि अब्राहम लिंकन की एक लेटर है जी जो उसने अपने सन के स्कूल मास्टर को या प्रिंसिपल को लिखी थी. उसमें उसने बहुत इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन लेटर, और उसमें उसने ये भी लिखा कि मेरे बच्चे को क्या सिखाया जाए. तो उसमें उसने ये लिखा था कि टीच माई सन टू सेल हिज ब्रेन and drawn to the highest bidder, but not to put a price tag on his heart and soul. So I know of my fraternity, my co-professionals are much seniors than me, जिन्होंने जिनकी फीस का स्टैंडर्ड एक आम वकील से 1000 गुना होगा जी, मगर वो कितने चैरिटेबल कॉजेज करते होंगे जी. और कितने केसों में उन्होंने फीस ही नहीं ली होगी जी, जीरो की होगी जी. नहीं, तो डिपेंड्स. तो अब ये आर्गुमेंट जी कि वो अच्छे लॉयर को अफोर्ड कर सकता है, तो अच्छा लॉयर क्या करेगा जी? अच्छा लॉयर से मतलब है कॉम्पिटेंट लॉयर, तो वो लॉ बनवाएगा, लॉ की एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा. और वही लॉ जो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल लॉ है, वो बाकियों के काम आने वाला है. सो इट कैन नॉट बी सेड, बट टू से दैट इंस्टीट्यूशंस आर सोल्ड आउट, दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर एक्टिंग लाइक दिस इन एवरी केस, आई एम सॉरी, दैट्स अनएक्सेप्टेबल. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग रियली हार्ड. अभी आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही ले लीजिए,
मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कंडेम किया जा रहा है, बट अगर मुझे किसी जेन्युइन केस में देखना है और सही तरीके से देखना है तो कितनी बड़ी दी मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स आर सो इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ट्रांजैक्शन के पीछे 1000 आपको उधेड़नी पड़ती है। सो इट इज एन ऑनरस टास्क, सो लेट अस गिव दैट ऑफिसर हिज ड्यू, right, not to doubt his integrity बिल्कुल, in every case, for बिल्कुल, that matter not to doubt any other institution, anyone's, yeah, any other institution. correct, These institutions will be क्योंकि, non-functional बिल्कुल, अगर हम एक general presumption के साथ चलेंगे। yeah, because sir, right now, you know, social media can be very cruel or it can be very kind. तो आजकल you know, it's very easy to say, जैसे मैंने एक assumption आपको दी कि ये होगा, या मैं assume करती हूँ कि suppose मैंने कोई crime करा और I am very close to a politician in power, so मैं बच जाऊंगी, मेरी एक assumption ऐसे होगी। So ये assumption एक common man की है, irrespective of, जी है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता हूँ कि है, जब आप किसी के क्लोज हैं तो आप कोई सिस्टम को किसी तरह कोई मैनिपुलेट कर लो। I would say two things that in that regard, or 2 or 3 things which I feel के हमें अपने सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करना है, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो इंसुलेट हो जाए, ना किसी के खिलाफ करें बिकॉज ऑफ एन एजेंडा, ना किसी के फेवर में करें, नहीं, दे शुड बी इंसुलेटेड, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, तो अपने आप सिस्टम विल फॉल इन प्लेस। तो आप जैसे common man, I'd say we are all common men, not that I am uncommon, but this common man philosophy, और आप जैसे जो अभी मीडिया में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप भी तो सोशल मीडिया में कंट्रीब्यूट कर रही हैं अभी with this talk show also, right, so this right kind of thinking has to come out. आप किसी केस को जज मत करिए, don't judge any book by its cover, right, जी, क्योंकि किसी ने कोई एलिगेशन लगा दी तो उसके ऊपर कमेंट शुरू हो जाते हैं, and I can only tell you I have seen cases जहां पर allegations were on to sky, और जब वो कोर्ट में केस गया तो वो एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं थी, नहीं? तो मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल। तब तक किसी आदमी के ऊपर जब दोष लगता है, और आप किसी पे दोष लगाते हो, किसी एक्यूज्ड पे, तो उसकी इंटेग्रिटी और सेल्फ एस्टीम इज डिस्ट्रॉयड, his family life is destroyed, he has to live with a blot on his reputation. That is why जो law की constitution की guarantee है that you are presumed to be innocent until proven guilty, उसको थोड़ी सी मान्यता दे दें, बिल्कुल मान्यता दे दें। जब सोशल मीडिया किसी के ऊपर हावी हो रहा है तो एक बार ही देख के, so beautiful and deep, yeah, क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई कुछ कह देता है ना, it's the biggest thing that someone can say to you. Correct. Also, we should be kind. Absolutely, we should be kind, and magnanimity. You said so rightly. Yes. Kindness, magnanimity, large-heartedness, and giving someone time, benefit of doubt, जिसको कहते हैं, for the time being. Benefit of doubt, for the time being. There may be other side of the story. Correct. तो सोशल मीडिया मतलब है जी, जो हम जैसे लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कर रहे हैं, और उसी में कंट्रीब्यूट करें, because we are all a part of the system. We are part of the system. जी, but very beautifully said, sir. We need to be kind. सबसे पहले. Absolutely. Sir, now I really want to talk about this, men getting trapped in false cases. जैसे बहुत अभी recently भी आया है न्यूज़ में, and it's so easy for women to just one fine morning अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगा देना कि डोमेस्टिक वायलेंस है या मेंटल हरासमेंट है या डाउरी का इशू है, एंड देन दे आर डिमांडिंग डिवोर्सेस विद अनबिलीवेबल एलिमनी एंड मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, एंड टू एन एक्सटेंट हमारा लीगल सिस्टम इज मच काइंडर टू विमेन एज कंपेयर टू मेन, एंड हमेशा विमेन ही विक्टिम मानी जाती है, और वी हैव सीन कि इसके कितने रेपरकशंस हुए हैं। सो व्हाट यू हैव टू टॉक से अबाउट दिस कि मेन के ऊपर इतने जो फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं या women के ऊपर unnecessary, they are even violating their women protection rights. So what do you have to say about this? सुधीर जी, हमारी जब लॉ की एवोल्यूशन हुई तो we all know we became independent in 47. जी, कॉन्स्टिट्यूशन आई 50 में, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशंस, बड़ी थॉट प्रोसेस गई उसमें, जी,
और कितने बड़े जॉइंट्स थे जिनके नाम जी, 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 डॉक्टर अम्बेडकर एंड कितनी दुनिया, जी, 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 ऐसे जीनियस लोग थे जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए। तो उसमें एक स्पेशल आर्टिकल बनाया उन्होंने, आर्टिकल 15, जिसमें उन्होंने वुमेन के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दी, बिकॉज वुमेन एट दैट टाइम एंड विद द टाइम्स हैव drastically changed. हाँ जी. They were discriminated in many areas, many spheres. Right? It was always a male chauvinistic and male dominated society. हमारा डॉरी, एंटी डॉरी एक्ट जिसको कहते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इट केम इन 1961. हम लॉ बनाते गए साथ साथ, क्योंकि हमें लगा कि ये अब्यूज हो रहा है जी. या डॉरी की एक प्रथा थी, तो उसमें जो हमारी लड़कियां हैं और उनकी प्रताड़ना हो रही है, आपका रेशियो, जो सेक्स रेशियो भी स्क्यू होता गया बिकॉज ऑफ दिस. पीपल वांटेड मोर इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड एंड एवरीथिंग. सो इन ऑर्डर टू, फिर हम इसी तरह लॉ लाते गए. फिर हमने एक 498 कैपिटल ए करके एक सेक्शन आईपीसी में पार्लियामेंट ने डाला, जिसमें स्पेशल क्रूअल्टी टू वुमेन का एक ऑफेंस बनाया, वो चाहे मेंटल क्रूअल्टी हो, फिजिकल क्रूअल्टी हो. हम एक सेक्शन और आईपीसी में डाला 304 कैपिटल बी, जिसमें डाउरी डेथ लेकर आए. कि अगर डेथ इज ड्यू टू डाउरी एंड सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस कंडीशन, 7 साल का मैरिज का ड्यूरेशन, तो विद सेफगार्ड्स वो सेक्शन डाला. 498 में भी सेफगार्ड डाला. फिर जब पार्लियामेंट को लगा कि इसकी थोड़ी सी अब्यूज हो रही है, मिसयूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेशली 498A जी, तो 498A है क्रूअल्टी टू वुमेन. ठीक है. तो एक सेक्शन 41 है जो हमारी सीआरपीसी थी पहले, प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर 41, जो अरेस्ट की पावर है. ठीक है. तो अरेस्ट में ब्राइडल लगा दिया, वहां पर एक अंकुश लगाया कि 7 साल के ऑफेंसेस में आप नॉर्मली अरेस्ट करोगे ही नहीं. अच्छा. और अगर करना होगा तो आप ऐसे करोगे. और वो स्पेशली एक्चुअली 498 को ही मद्देनजर रख के बनाया था. ओके. और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि आप इन केसेस में एक नॉर्मल अरेस्ट मत करो. सुप्रीम कोर्ट हमारी एक बहुत खास कोर्ट है. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो है ही है, जैसे हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं. उसके पास एक पावर है सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 141 है, वो 142 में वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जस्टिस के लिए, किसी भी किस्म के लिए. 141 में जो वो लॉ ले डाउन करते हैं वो हर एक अथॉरिटी पे बाउंडिंग होता है. ये नहीं कि हाई कोर्ट का लॉ बाइंडिंग नहीं है किसी और पर, बट सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो सुप्रीम हो गया. ठीक है, वो फाइनल है. सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट बिकॉज इट इज राइट, बट इट इज बिकॉज इट इज फाइनल. सो वो जब वो उन्होंने जजमेंट में ये रेशियो ले डाउन कर दिया और बोल दिया गाइडलाइंस, और वो गाइडलाइंस पूरी कंट्री में फॉलो हो रही है. एक्चुअली अगर आज कोई लड़की लाती है कि जी मेरे ससुराल वालों के खिलाफ या पति के खिलाफ आप एक FIR शिकायत लेके जाती है, तो FIR दर्ज करो, तो पुलिस वाले के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी पहले इंक्वायरी करना, फिर अरेस्ट करना, फिर FIR करना. अरेस्ट तो उसके भी बाद, अरेस्ट तो करना ही नहीं है. अच्छा. वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में करना है. ओके. क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अंकुश लग चुके हैं, अरेस्ट की पावर. जी जी. मैं FIR रजिस्ट्रेशन पे ही आ गया हूं पहले, सीधा फर्स्ट स्टेप पे ही आ गया. ये है ही नहीं, अभी बहुत सारे सेफगार्ड है, सेफगार्ड है जी. अब इस पर्टिकुलर केस की आप बात कर रही हैं जहां पर वो जी, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जी. मगर उसमें भी 2 सवाल उठते हैं जी. नहीं, एक मैट्रिमोनियल लाइफ खराब हो गई है और वकीलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट्स को ढंग से गाइड करें. बिल्कुल. मगर शायद हमारी कंट्री में, मैं आपको वकालत के तौर पे बताता हूँ, एज ए वकील बताता हूँ कि मीडिएशन की रिस्पेक्ट नहीं है. अगर मैं किसी ऑर्डिनरी वकील की बात करूं तो वो मीडिएशन में बैठता तो उसको फीस नहीं मिलेगी. हाँ, उसको लगेगा कि इसको आगे खींचो. नहीं, उसको क्लाइंट ही उसको फीस नहीं देता. Exactly. मीडिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सो फार. म्यूचुअल कंसेंट उसको मीडिएशन को वो इंपॉर्टेंस नहीं देता. करेक्ट. दी नहीं गई है. हाँ. तो अगर आपकी नजरों में आप मुझे वकील करेंगी तो आप चाहेंगे कि मैं कोर्ट में आर्ग्यू करूं, और कोर्ट के बाहर कुछ करूंगा तो कहेंगे ये कोई सर्विस ही नहीं है. जैसे प्रेफर करोगे कि आप जैसे कह रहे थे कि मैं कहता हूँ कि इतना बर्डन है कोर्ट्स पे, आप करेक्ट बीच में मीडिएशन को प्रोफेशनल रूप देना भी करना चाहिए. अभी हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है इसको बहुत इनकरेज कर रहे हैं जी, कि मीडिएशन शुड बी इन्वोक्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड लीगल टूल, प्रोसीजर. हाँ जी, लीगल टूल. इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस जी. तो अब वो मीडिएशन उनकी हुई होगी किसी ना किसी क्वार्टर पे जी, जो भी वो केस था वो नहीं हुई. वो I don't know the complete facts, so I won't comment whether her case was right or wrong. जी. But the death is extremely unfortunate. जी. मगर डेथ के ऊपर भी एक और एरिया है जो आपको बताना चाहिए. वो ये है जी कि
अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज लगा उस लड़की के ऊपर। हाँ जी। तो सुइसाइड के लिए लॉ ये है जी कि अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो, जो मरने वाला है वो हाइपर सेंसिटिव, और अंग्रेजी का लफ्ज है टू ऑर्डिनरी पेटुलेंस इन लाइफ, जो ऑर्डिनरी इवेंट्स इन लाइफ को आप कैसे रिएक्ट करेंगी, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। टेस्ट इज, इसको हम बोले तो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का टेस्ट है जी, तो और कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, टेस्ट मेरे स्टैंडर्ड का नहीं। तो जी दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट वी हैव टू सी एज सोशल मीडिया एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल फ्रॉम अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। नो डाउट I see in and out. Yes, there are cases where there is abuse of process of law when such kind of cases are foisted. मगर उसी समय हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है। तो अगर इसकी मीडिएशन हो जाए तो सबसे अच्छा, और हर लेवल पे एनकरेज होती है। मैंने देखा है कोर्ट्स भी करती हैं, चाहे वो मेंटेनेंस की कोर्ट, चाहे डिवोर्स की कोर्ट, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, जिसके आगे एंटिसिपेटरी बेल लेकर भी लोग जाते हैं, तो वो भी इनकरेज करती है। आई थिंक दिस ट्रेंड नीड्स टू बी इनकरेज। नया लॉ लाए, इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितना एग्जिस्टिंग लॉ को इम्प्लीमेंट करे ढंग से। जो लॉ सो कॉल्ड फेवर ऑफ विमेन है उसको सेफगार्ड्स के साथ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होंगे, 100% हैं इस कंट्री में। हर जगह अर्बन नहीं है, कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां लड़कियों को बहुत सफर करना पड़ा है। सो हम एक ही पेंट से सबको ब्रश नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम हर कैनवस अलग है, और उसको हम एक ढंग, उसको एक इम्प्लीमेंटेशन की, इसको हम इविल ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन अ फेयर, ऑब्जेक्टिव, जस्ट वे। ऑल्सो सर, जब आपने बोला तो इट जस्ट स्ट्रक मी कि अबेटमेंट टू सुसाइड बड़ा यूजलेस लॉ नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैं नोट लिख दूं सुसाइड करने से पहले के फलाने ने मेरे को ऐसे ऐसे किया, सो मैं सुसाइड कर रही हूँ। अब इट इज योर वीक माइंड दैट इज आस्किंग यू टू टेक दिस स्टेप, और उसमें दूसरा कोई फंस जाए, तो इज इट नॉट वेरी। ये बहुत बड़ी डिबेट जी, आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली लॉ इज नथिंग मैम बट कॉमन सेंस जी। तो आपने कॉमन सेंस के दायरे से बात की है, और मैं आपको बता दूं कि इसी के ऊपर यही लॉ इवॉल्व होता ही जा रहा है। मैंने बहुत सारे केस किए हैं बाय चांस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और एक केस अमृतसर से भी आया था, वो नेम द पार्टीज, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था और एक स्टूडेंट ने अपनी जान ले रही थी, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश की प्रोसीडिंग। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश की, और यही बात बोल के जो आपने अभी बोली कि अबेटमेंट के लिए द वर्ड इज एडिंग, इंसाइटिंग और कंस्पायरिंग। वो जो आप किसी तरह की जो इंसाइटमेंट है वो किस नेचर की होनी चाहिए जी, जो उस क्राइम को करने में उसको मजबूर कर रहा है। बहुत ही रेयर केसेस होंगे उस नेचर के। ये जो ऑर्डिनरी बातें हैं, जैसे there was 1 or 2 year back a very young celebrity, she was working in a serial, she committed a suicide, और उसमें न्यूज में बहुत आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड लगा दिया, कि उनका झगड़ा हो गया था एंड ऑल। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी अनफेयर कि किसी के ऊपर भी well again I will say that as it is said, truth is stranger than fiction. हाँ जी। Each case has to be judged on its own facts and circumstances. We can't equate all cases in the same way. But at the same time, you are absolutely right to an extent that the law is that it has to be judged from the standard of ordinary prudence. Ordinary prudence. कि आप लाइफ में सेंसिटिविटी को किस ढंग से डील कर रहे हो। बिल्कुल। ओवर सेंसिटिव हो तो भी ऑफेंस नहीं बनता। और दूसरी तरफ अगर जो करने वाला है, जिसके ऊपर एक्यूजिशन, और वो इनसेंसिटिव है, वो भी वो करता ही जा रहा है, वो हरास करता ही जा रहा है इस ढंग से। हाँ जी। और शायद उसका अल्टीमेट एम ही ये था कि इसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दूं। सो वो भी केस हो सकते हैं, राइट। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में जब हम अपने कमेंट देते हैं जी, तो हमें एक लॉ के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो सबको है जी। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स नॉट बी टू जजमेंटल इन अप्रोच। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करें, फ्लेक्सिबल रखें, दूसरा साइड का व्यू भी लेके चले। एक इलेक्शन ही होती है इस कंट्री में, तो मैंने देखा है कि ग्रुप्स में झगड़े हो जाते हैं। जी 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 जी। So I don't know what is there to get polarized about. Yes.
हम सब के व्यूज है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है जी Yes. कि हम सब डिफरेंट व्यूज के साथ कोएग्जिस्ट करें। So you can have different political ideologies, you can have different religious sentiments, but just learn to Learn to be coexist. with each other. Tolerance is the biggest virtue हाँ जी, and the biggest duty. जी, It has to be followed. रोड रेज। आप देखिए रोड पे गाड़ी चलो गलत चल भी गई, जला भी दी, एक माइनर एक्सीडेंट और या माइनर सी बात के ऊपर लोग एक दूसरे को मारने पे आ जाते आ हैं। जाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न बी एज अ सोसाइटी, एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम्म, हमें थोड़ा सा कामनेस और लोगों के बारे में जजमेंट कम करना, बहुत जरूरी है। अफवाहों पे ज्यादा नहीं, यकीन ना रखना जी। है। I'm sure after this, I've listening to all this, our viewers are also going to get more, जितना हम खुद polarized thought रखते हैं, एक, we have an image towards judicial system. I think वो हम कितना कुछ सीख रहे हैं कि हाँ, जजेस तो बेचारे जी दे लिव इन ग्लास हाउसेस ऑल द टाइम। उनको तो जी मतलब अब तो हमारी कोर्ट्स आर दे आर ऑनलाइन। मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर ऑनलाइन। right, सो जजेस किस केस में क्या कमेंट चल रहा है, क्या आर्गुमेंट चल रहा है, यू कैन वॉच इट। सो दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर, Scrutiny. ये तो उनको जस्टिस तो करनी है, दे आर बाउंड बाय ओथ टू डू इट, हाँ, बट साथ के साथ उनकी स्क्रूटनी opinions से भी उसको भी डील करना deal है। करना है। So that one should be kind in making बिल्कुल, remarks. right. At the end One of the should be day, kind in making even a remarks. judge is a human being. Yes, right? yes. So even a lawyer who's representing any side, बिल्कुल, right? Maybe according to public perception, the wrong side. Right? हम्म, He is also a human being. correct. And he has his own perceptions and notions about a case. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, आई वांट टू आस्क, ये अब तो चलो आईपीसी नहीं है, बट अर्लियर वी यूज्ड टू से ना कि एक मर्डर में, और एक कहते हैं उसने मर्डर कर दिया, और एक है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो वी हेयर दिस अ लॉट, एंड थोड़ा सा मुझे पता है, लाइक मर्डर इज जब आप इंटेंशनली किसी को मारते हो कि मैंने उसको किल करना है, एंड कल्पेबल होमिसाइड है जब मेरी फिट ऑफ द मोमेंट में हो गया या एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल। तो ये दोनों को ये क्या है बेसिकली, डिफरेंस ज्यादा क्या है इनमें, मर्डर में, और जो कोर्ट इसको कैसे डील करता है, और तो- डेथ पेनल्टी किन केसेस में दी जाती है? So there are 2-3 spheres आपका Spheres सवाल, of, but जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्योरली लीगल है। ऑफेंस आज भी है जी मर्डर का, जी, सिर्फ उसकी सेक्शन बदल गया और थोड़े से रेडिकल। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है वो उसने इट हैज गिवन राइज टू अ न्यू एनैक्टमेंट, भारतीय न्याय संहिता, बट ये नहीं है कि वो ऑफेंसेस खत्म हो, ऑफेंसेस वही है। जी, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ मर्डर व्हिच इज डन विद इंटेंशन एंड नॉलेज बोथ। अच्छा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो होगा जिसमें आपने कत्ल तो किया बट आपकी मर्डर की नहीं है। वो जैसे 304 करके हमारा एक सेक्शन है, ठीक? तो 304 में आपने किसी को मारा मगर इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है, अच्छा, उसकी डेथ होगी, गलती तो से हो गया, गलती से नहीं हो गया, नॉलेज थी ठीक है, इंजरी इन्फेक्ट करना मगर इंटेंशन नहीं थी। कि डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जी, ऑफ द जी, केस। जी, आपने किसी को मे बी स्टिक से मारा और उसकी डेथ हो गई, हम्म, समथिंग लाइक दैट। और 304 कैपिटल ए होता था आईपीसी में, सिमिलरली अभी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन यहाँ पे भी है, विच इज Okay. एक्सीडेंट, ओके, डेथ बाय एक्सीडेंटल, डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। हाँ, तो आपने नेग्लिजेंस से किया, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, कोई आगे आगे, हम्म। तो वो वो death मर्डर वाली- नहीं किया जाता वो हो गया उसमें। कल्पेबल, इट इज ऑल्सो डेथ, ओके, बट इट इज डेफिनेटली नॉट मर्डर। सो यू विल कॉल इट कल्पेबल होमिसाइड It is in, also homicide. ओके, It is a death, ओके, right? At the end of the day, and culpable is what is where you can be charged. जी, But these are the offenses of a different category now. हम्म, Murder is with intention and knowledge. हम्म, You shoot someone and you kill him. और उसके जजमेंट अलग होता है, उसके और- लिए अलग पहलू है उसके, इसके अलग है। मगर ये डिबेट बहुत ही लीगल और टेक्निकल है, जो कि एक ऑर्डिनरी समझ नहीं पर्सन आएगा। के, मगर आपके लिए ब्रॉडर डिस्टिंक्शन ये है जी, कि एक एक्ट जो आपने रैशली किया या नेग्लिजेंटली किया, डॉक्टर अपनी टेबल पे किसी का ऑपरेशन कर रहा है, हम्म, तो नॉर्मली डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत सारे ऐसे केस बने जी, 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 रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के। जी, तो उसमें फिर लॉ इवॉल्व हुआ बहुत सारा कि हर एक्शन ऑफ डॉक्टर हम्म, कैन नॉट लीड टू क्रिमिनलिटी। बिल्कुल, तो नेग्लिजेंस ऑफ दैट नेचर एट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत हायर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया।
कि वो स्टैंडर्ड जो कोई प्रोफेशनली मेडिकल प्रोफेशन उसको एक्सेप्ट ही ना करे, वो अडॉप्ट किया जी। कि जज साहब को, डॉक्टर साहब को कुछ ऐसा करना था जो उन्होंने नहीं किया, और कुछ ऐसा किया जो मेडिकल साइंस परमिट ही नहीं करती, रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं तो वो भी एवरी डे वी डील विद इट। तो गाड़ी आप चला रहे हो तो आप क्या आपकी नेग्लिजेंस को साबित करने के लिए उनको ये बताना पड़ेगा दैट इट वाज प्योरली यू, नॉट द अदर साइड, राइट? अब जैसे सर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है, वो तो दैट्स अ वेरी ग्रेव ऑफेंस। दैट्स अ वेरी ग्रेव ऑफेंस। In fact, that is intolerable. In most of the developed societies. We also have now a very strict law relating to that. जी. And that may even go beyond the threshold, close to a murder. अच्छा. Given in a given case. और सब डेथ पेनल्टी किन केसेस में मिलती है? डेथ पेनल्टी जी, मर्डर केसेस में डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, मगर उसके ऊपर एज आई सेड हमारा प्रेसिडेंट लॉ है, तो उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं। द डेथ पेनल्टी शुड बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, सर्कमस्टेंसेस में। हमारी जो पीनल फिलॉसफी है जी, कि जब किसी को कोई एक्यूज कन्विक्ट भी हो गया, तो पीनल फिलॉसफी इज रेफॉर्मेशन, नॉट रेट्रीब्यूशन। सो वी हैव इवॉल्व्ड टुवर्ड्स रेफॉर्मेशन। आजकल जेलों का नाम सुधार घर है। That it's like correctional. It's correctional institutions now. अब behavioral correction करते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो, उनको काम पे लगाते हो ढंग से, उनका रूटीन है। फिर उनको आप माफिया भी देते हो कि आपका गुड कॉन्डक्ट था जेल में, आपको माफी दे दी, आपने सोशल वर्क किया, आपको इतने साल माफी कर दिया, राइट? गवर्नर के पास पावर या प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसका गुड कॉन्डक्ट देखते हैं तो वो उसका छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं उनको। वी कॉल देम रिप्रीव or remissions or setting off of some period of their sentences. So these are reformist movements now. तो अभी हम जब बात करते हैं डेथ पेनल्टी की, तो डेथ पेनल्टी तो एक एक्सेप्शनल केस में, कोई टेररिज्म का एक्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग, आई वुड से आउटरेजियस, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आउटरेजियस। पार्लियामेंट अटैक था जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। कंट्री की पूरी इंटेग्रिटी जी, सॉवरेनिटी खतरे में थी जी। एक नॉर्मल हीट ऑफ द मोमेंट पे क्राइम किया हुआ है, और क्राइम बहुत डेडली है, डिजास्टर है। या निर्भय वाला केस था, इट वाज टू क्रूअल जी, इट वाज टू इनह्यूमन जी। सो मे बी दैट काइंड ऑफ कैटेगरी, बट शॉर्ट ऑफ दैट यू विल सी मोस्टली, अगर आप कानून देखेंगे तो कोर्ट्स हैव हैड अ मोर लिबरल अप्रोच नॉट टू गिव डेथ पेनल्टी। उसके बदले उन्होंने एक और इवॉल्व किया हुआ जी, कि लाइफ ज्यादातर 13-14 साल में खत्म हो जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ को कई बार उन्होंने रिमाइंडर ऑफ लाइफ कर दिया, थ्रू आउट लाइफ कर दिया, ये कर दिया। और सर अब आई थिंक टाडा नहीं रहा ना जी, इट्स नॉट देयर एनीमोर, एंड वी हैव यूएपीए नाउ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें बहुत सारे, आप मीडिया से अभी खबरों में पढ़ोगे तो यूएपीए बहुत सारा लगा है। थोड़ा सा समझाएंगे? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज जी, एक्चुअली दे आर रिलेटेबल टू, अगेन, एनीथिंग रिलेटिंग टू द कंट्री। ओके, जो देश के खिलाफ, जो कंट्री को अफेक्ट करता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज नारकोटिक से शुरू हो सकती हैं, टेररिज्म से भी आ सकती हैं जी, और भी हीनियस नेचर के क्राइम से आ सकती है। एंड नारकोटिक्स में हम लोग कितने स्ट्रिक्ट है? हमारा इंडियन लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जी। ओके, इनफैक्ट इट इज हाई टाइम। पंजाब में तो हमारा, इट इज हाई टाइम, उड़ता पंजाब। हाँ, पंजाब में तो जी, आई वुड से, well, I don't know how many people will agree with me, but I think we need to look at it from a different perspective altogether. क्योंकि हमने सबको, we started painting everyone with the same brush. तो नारकोटिक्स एक्ट जो 1985 में आया, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन बन गया। उससे हरासमेंट भी होनी शुरू हो गई। एक नॉर्मल कंज्यूमर है जो नहीं रह सकता ड्रग के बिना, उसको आप जाकर डी एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने की बजाय उसको मिनिमम सजा 10 साल की थी जी। तो फिर 2001 में सरकार ने, पार्लियामेंट ने उसको ग्रेडेशन की, एडिट किया लॉ को। बोला जी ये नॉन कमर्शियल क्वांटिटी होगी, ये स्मॉल क्वांटिटी होगी, और ये कमर्शियल होगी, और ये पर्सनल यूज, इसमें 6 महीने की सजा होगी, इसमें मैक्सिमम 10 साल की, इसमें 10 से 20 साल की, कुछ ऐसा किया। तो ये डिग्रेडेशन, रैशनलाइजेशन हुई। अभी शायद वो समय आ गया जी, लुकिंग एट आवर यंगर जनरेशन एंड द वे थिंग्स आर गोइंग, एक तो ड्रग्स पे स्टॉपर लगना है चाहिए हर किस्म का। एक कुछ ऐसे कैटेगरी, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी
जिसको हम लीगली मॉनिटर कर सकें। आपने जहां जहां पे लिकर प्रोहिबिशन की है कंट्री में, वहां पे स्मगलिंग हुई है लिकर जी, की, बिल्कुल। राइट? हाँ जी, तो मे बी इट इज टाइम, अब आपने आज कसिनो खोले हैं कहीं पे तो रेगुलेटेड वे से कहीं चल रहे हैं जी, मे बी आई थिंक कुछ this is again an area of open discussion, right, absolutely, that we may decriminalize some certain things certain so that things to make it's smoother. people not to get into the trap of these drug peddlers, बिल्कुल, which who are doing it's most of the people who are brought to justice by law enforcement agencies, actually you would be astonished that 90% of them are consumers, personal consumption wale. तो अब how do you, the big fishes are hardly caught, बिल्कुल, जो नेटवर्क वाले हैं। सो यू मीन टू से कि उसी रेशियो में कुछ सिस्टम को एडिट करना चाहिए सो दैट ये छुप के ना हो, like the way it is going on in many countries जी, there is liberalization हुई है, right? अब होली के दिनों में जी भांग का प्रचलन होता है ना, it is a narcotic at the end of the day जी, absolutely, तो अब इसको थोड़ा, so you have to think from those angle, maybe the government in a higher plane, but उसके क्या consequences होंगे, वो ground level पे क्या reality होगी, so उसके ऊपर एक debate है, but yes we are very sensitive to drugs in courts of law जी, and at the same time we ensure that the investigating agencies act in a very stricter safeguard following manner जी, तो safeguard सारे follow करें so that people जिनको prosecute कर रहे हो वो actually उनको ढंग से जस्टिस मिले। अगर किसी ने किया है वाकई में तो उसको वाकई में सजा मिलनी चाहिए, ना कि वो किसी लूप होल से छूट जाए। बिल्कुल, और अगर किसी को इनोसेंट ऐसे ही फंस रहा है हाँ, तो वो भी गलत चीज है। बिल्कुल, द बैलेंस इज yes. Okay, sir, I really want to touch a very sensitive topic. I believe euthanasia, or as they say, mercy killing, should be allowed in India. Active euthanasia यहाँ पर allowed नहीं है. There should be a right to dignity of death, जो इंडिया में नहीं है. I'm really an advocate of euthanasia कि जब कोई इतना पेन में है या medically he is in a position where there is absolutely no hope of getting better and वो terminally ill है, तो एक बैलेंस में इंडिया को थोड़ा लिबरल होना चाहिए. If he is living the life of a vegetable, European countries allow euthanasia. So what are your views on that? I'm a great advocate. मुझे लगता है कि सबको right of dignity of death होना चाहिए. I would also actually endorse qualitatively what your views are. जी. एक बड़ा फेमस केस हुआ था, शायद आपको पता हो, तो एक नर्स थी बॉम्बे की, जी, बिल्कुल, अरुणा शानबाग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, for many years she was, तो that's tested in Supreme Court, जी, and if I correctly remember तो जस्टिस काटजू थे, मार्कंडे काटजू, okay, बहुत ही खूबसूरत जजमेंट है वो, आप जजमेंट वो पढ़िएगा, it's like a story book, it's better than reading any story, okay, तो जजमेंट ही बहुत खूबसूरत लिखी, उसमें शेरो शायरी भी है. कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या था वो जजमेंट में, क्या हुआ? उसमें यही था कि वो इतने सालों से वो वेजिटेबल स्टेट है, तो उसको डिग्निटी के साथ मरने का राइट दिया जाए, जाने. तो कोर्ट ने उसमें चेक्स बैलेंसेस बनाए कि हम कैसे डिसाइड करें किसकी जान हम लें, और ऑर्डर करें कि उसकी जान ले लो, क्या पता मिरेकल्स होते हैं वो ठीक हो जाए, नहीं? और ऐसे भी केस हुए हैं कि मे बी 1 in a million, you never know. So unless the person whose life is in question is in a position to take a decision, right? And that too rationally, which is not possible in such a state. In such a state. जी. So how would you go? किसी क्या पता किसी रिलेटिव का एजेंडा हो, नहीं, but sir वो कोई रिलेटिव किसी जायदाद के ऊपर बैठा हो, how do you distinguish? अब जैसे ये तो मेडिकल ओपिनियन, कोई टर्मिनली इल बीमारी से लड़ रहा है और वो बंदा खुद कह रहा है सपोजिंगली कि डोंट पुट मी ऑन अ वेंटिलेट, वो तो चलो पैसिव यूथनेसिया हो गया शायद, करेक्ट, बट एक्टिवली वो कह रहा है कि आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट हेल बिफोर पासिंग. सो दैट पर्सन, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज में अलाउड है, विद एन इंजेक्शन दे डाई पीसफुली विदाउट गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा ऑफ दैट पेनफुल डेथ. सो see, that is again the law has to evolve, and you are so right, and I also feel that way, that अगर
किसी को ये आभास हो चुका है that he doesn't want to suffer anymore, yes, तो शायद this would be yeah, the so line ये है, right you time. don't want to suffer. तो एक उस पे कोई यार्ड स्टिक ले डाउन करके जी, शायद होना चाहिए जी। ये वक्त आएगा, लॉ हमारी जो है ना जी वो डायनामिक स्टेट है, इट इज नेवर स्टैटिक। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आती हैं लॉ इवॉल्व होता है, लॉ कल्टीवेट होता है, और जो कल था वो आज नहीं रहता, नहीं? बिल्कुल, और जो आज है वो शायद कल नहीं रहेगा। तो दिस लॉ की ये ब्यूटी है, नहीं? लॉ इज सो डायनामिक इन इट्स डिस्कोर्स, एप्लीकेशन, अप्रोच, दैट वो कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। साहिर साहब ने क्या खूबसूरत लिखा जी। तो इट विल बी in accordance with that. It can be, or maybe their views, your views and mine view, and some people have totally against views adverse to this. Yeah, but people who are living, who are deciding, who are dealing with this, right? It's the call of the two people who are dealing with this. One is suffering, and the other is who is seeing the suffering of the loved one. Correct. Okay, sir, let's end at a beautiful note. And I got to know that you are a lyricist for Sufi Score, which is a YouTube channel, and you've written compositions like Lassi and Yaad, which have been performed by Shafqat Amanat Ali Saab. Shafqat. Yeah, so कुछ शायरी हो जाए. I think हम softer और lighter note पे end करेंगे. नहीं जी, शायरी तो I think each one of us has a streak of maybe a poetry. मैं तो very poor, sir, very poor. So please brush my skills. तो ये एक ओकेजन आई और मुझे कवाली सुनने का मौका मिला। नुसरत साहब को तो मैं देख नहीं पाया, okay. तो वो तो पहले ही चले गए बिफोर आई हैड एनी चांस। तो एक बड़ी खूबसूरत कवाली सुनी मैंने, सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत अच्छे फनकार हैं उनकी। तो जब मैं कवाली सुन रहा था तो आई नोटिस्ड 12 या 13 जितने भी लोग थे वो, उनमें एक तो लीड सिंगर थे जो गा रहे थे, जो एक उनके साथ लीडिंग सिंगर थे, कोई 4 या 5 लोग थे जो तालियां बजा रहे थे, बिकॉज़ ताली इज एन इंस्ट्रूमेंट इन कव्वाली। एक तबले वाला था, हारमोनियम था, हारमोनियम खुद ही बजा रहे थे वो। मगर एक आदमी था जी जो छिप के लीड सिंगर के पीछे बैठा हुआ था। मतलब अगर आप सामने से देखोगे तो शायद वो नजर भी नहीं आएगा। है? तो जब वो कवाली खत्म हुई और वो एक बहुत ही लाजवाब किस्म का माहौल था जी। तो मैंने उनसे जब इंट्रोडक्शन हुई तो मैंने पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे थे? पीछे बैठे थे तो थोड़ा, तो कहते जी मेरा काम था कि जो नेक्स्ट लाइन के लिरिक्स हैं वो इनको विस्पर कर देना। अरे कि कहीं कोई वर्ड लिरिक्स देना, या कोई लफ्ज छूट गया तो वो बता देना, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आने वाला है वो बता देना, प्रॉम्प्टर। सो ही वाज लाइक अ प्रॉम्प्टर। तो मेरे को उसी टाइम पे मैंने अपने दफ्तर में फोन किया, अपने सब एसोसिएट्स को, अपनी टीम, मैंने कहा भाई जो हम करते हैं ना ये कवाली है। बिल्कुल, बिकॉज somebody is performing but not without others. Yes, it won't be so smooth, melodious. Yes, it won't give that kind of a frequency where audience can connect. Yeah, it's also unless you're coherent entire. So somebody has to prompt also. तो जी ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आई थिंक दिस पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, और हमारे लॉ के साथ तो बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। सो हमारी जिस सबसे लीडिंग जजमेंट्स, इंक्लूडिंग अभी आपने अरुणा शानबाग केस की बात की, तो उसमें उन्होंने गालिब का शेर लिखा है, सुनाइए। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। स्टार्टेड फ्रॉम दैट, इट्स सो डीप। शेक्सपियर है आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। गालिब की बहुत खूबसूरत शायरी, उसको कोट किया हो। मैंने एक केस किया, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एरिया होता है जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ नहीं है। ओके। उसमें आपने जैसे कोई स्मगलिंग एक्टिविटी की तो मुकदमा तो जब चलेगा, सरकार आपको 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देती है, विदाउट अ ट्रायल, नो बेल। तो उसमें लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है कि इट हैज टू बी डन अगेन इन रेयर केसेस एंड यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रोसीजर। छोटी सी इन्फेक्शन की तो आदमी को रिलीज करो, कुछ ऐसा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो जस्टिस कबीर थे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने जजमेंट में एक जॉय एडम्सन करके एक सॉन्ग ऑन फ्रीडम है,
तो फ्रीडम के ऊपर सॉन्ग कोट किया पूरा जजमेंट के अंदर। फिर ऐसा ही एक केस और किया, तो फिर यही मार्कंडे काटजू साहब एक जज थे जिन्होंने शानबाग की जजमेंट लिखी मेरे केस में। तो उन्होंने गीता का श्लोक लिखा, ठीक, और उस श्लोक में ये है, उसकी संस्कृत में श्लोक दिया और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, फॉर ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। तो शायरी का डायरेक्ट कनेक्शन है जी लॉ के साथ, हमारे लॉ के साथ जी। तो लस्सी में इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। So we were, I would say, common thinking friends who were too much into Sufism and ghazals. जी. And हमने तब एक प्लेटफॉर्म आपस में ही बनाया, तो आपका जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह है, जी. तो उसमें हमने एक आपस में परफॉर्मेंस शुरू की, तो जिसमें हमने कलाकारों को, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे उनको, तो उनको वहाँ पे लाइव सुनना शुरू कर दिया। तो वो इतना फेमस हो गया जी 2 महीनों में जी कि हमारे उस तरफ के जो हमारे पाकिस्तान दोस्त हैं, हमसाए जी, तो उनकी भी परफॉर्मेंसेस हो गई जी। तो वहां से जावेद बशीर साहब जी, ने I've heard about him. हाँ, वो आई थिंक भाग मिल्खा का गाना है, तो बहुत अच्छा गाना है उनका, वो इश्क करूं या करूं इबादत जी। सो इसी तरह हदीका कियानी जी she was hosting, I think. No, she was also one of the performers. Okay. Then she is now part of the Sufi school. जी. Then Okay. Atif साहब, असलम, Okay. राहत जी, शफकत अमानत अली, जी. ये बहुत सारे, ये सब बॉलीवुड सिंगर्स भी रहे जी। और इंडिया में जाएं तो आप जगजीत जी के जो गिटार वायलिन बजाते थे, उनके साथ 14 साल की उम्र से, अच्छा, वो हैं दीपक पंडित जी, ही इज पार्ट ऑफ सूफी स्कूल। How much time you're able to give to Sufi Oh, school? it's like you can say my heart and soul. I mean, I'm blessed to be a part of that, so I write a bit, but I appreciate listening to it. So वहाँ पे, and so you wrote about for your parents, याद? Yeah, I wrote about them जी। वो शायरी थी, वो मैंने लॉकडाउन में लिखी थी, और शफकत जी ने वो गाया, वो भी लॉकडाउन में था। अच्छा। और उन्होंने, उनकी भी सिस्टर की उस समय डेथ हुई थी, और वो उनको खुद को कोविड था जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ। अरे। तो उसके कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि याद आती है उनकी तो एक सुकून का होता है एहसास, खुदा की तरह रहते हैं वो मेरे आसपास। So but he made it very melodious because of his singing. I've written many others तो जो इधर उधर की कंट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। I keep on writing, it gives me some kind of a vent out. Yeah. I'm also editing a book which actually was a biography of my father, but would unfortunately he passed away in between. मगर अब इतने साल भी हो गए हैं, मैं उसको फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। और उसका रीजन ये है कि मैं जब एक भी चैप्टर पढ़ता हूँ ना उसका, मुश्किल एडिट करने के लिए, तो I am unable overwhelmed. I'm overwhelmed. तो मुझे ऐसे लगता है कि how would have he lived with his thoughts? Yes. कुछ उन्होंने ऐसा उस समय देखा, उस समय की जो सफरिंग है, शायद वो हीलिंग इज अ प्रोसेस जो हम सबको इसी लाइफ टाइम में करके जानिए। आई डोंट वांट कि हम सब सफर करें किसी बात पे, जैसे वो पार्टीशन का सफर था जी। He saw his mother being killed and he could not heal. अगर हम हील नहीं करते ना, तो वो अगली जनरेशन को पास करने वाली बात है। And that is where I think maybe such kind of things give you a vent out. नहीं सर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं and आप जरूर बायोग्राफी कंप्लीट करेंगे and such a pleasure to have you on the Grain Talk Show and मैंने बहुत सीखा है and you know you are such a big man but no. so humble and you were so sweet to us. Thank you so much for being a part of it. So very kind of you जी। अमृतसर और अमृतसर के लोगों के लिए जो आप कर रहे हो, that is commendable and I'm proud of you as an Amritsari. I carry that tag also everywhere that I belong to this city. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Alright friends, that's a wrap for today's episode. I hope you all enjoyed watching it. We'll see you all very soon. Until then, stay tuned, stay fueled, lots of love. And yes, please do not forget to subscribe to our channel, The Grain Talk Show. Bye-bye.